Good morning, children. Today we will read English Lesson 11 People for Poor People and Five Kind Elves. First we read in English, then we explain in Hindi. Once there was a shoemaker called Ben. He lived with his wife Nancy. Nancy used to help him in different things. At night, Ben and Nancy were talking to each other. Ben, last piece of leather and no money left. How will we buy food? Nancy, God will help us. Don't worry, Ben. After cutting the last pair of shoes that night, Ben went to bed. He got a surprise the next morning when he saw something special. Ben, Nancy, look at this. A new pair of shoes shining bright. Nancy, this pair is very beautiful. I knew that everything would be all right. God is great. Ben sold the shoes in the market and bought more leather with the money that he got from the sale of the shoes. See next page. The same thing happened again on the next night. He cut the leather for the shoes and found them stitched next morning. This happened every day. After a few days, and Ben and Nancy talked about the event. Ben, let us hide today and find out who does the stitching of the shoes for us. That night, they hid themselves behind the door and waited. Soon they saw 5 elves entering the room. They were carrying small cobbler's tools along with them. The elves danced and sang as they sat down to work. The elves were talking to each other. We are the 5 busy elves. We like to help the needy people. We like to feed every poor body. Open the next page. Except the ones who are greedy. The elves finished the stitching of the shoes and went away. Nancy, such kind little people, I will make some cloths for them to say thank you. The next night, when the elves reached the house, they were amazed to find 5 sets of beautiful cloths in place of leather. They put on the cloths happily and danced all night. Ben and his wife never forgot the kind elves. Now we will explain in Hindi. पुअर मीन होता है बेचारे. पीपल लोग, बेचारे लोग या गरीब लोग. पुअर मीन बेचारे या पुअर मीन गरीब भी होता है बच्चों. पुअर मीन बेचारे गरीब लोग. पुअर पीपल गरीब लोग. एंड 5 काइंड एल्व्स और 5 दयालु एल्व्स. एल्व्स मीन छोटे कद के लोगों को एल्व्स बोला गया है. इसमें बौना कह सकते हो, छोटे कद के लोग. वंस मीन एक बार. देयर वॉज ए शूमेकर मीन शूज बनाने वाला, जूते बनाने वाला. जूते बनाने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? काबलर कहते हैं, मोची कहते हैं. यहाँ पे शूमेकर आया है. जो जूतों की मरम्मत करता है उसको काबलर बोलेंगे, और जो शूमेकर यानी जो शूज बनाता है वो उसको शूमेकर बोलेंगे. तो जूते बनाने वाले को हम क्या बोलेंगे? शूमेकर.
called Ben. Once there was a shoemaker. एक बार एक shoemaker था जिसे बेन कहते थे. He lived with his wife Nancy. वह अपनी पत्नी नैन्सी के साथ रहता था. Nancy used to help him. नैन्सी उसकी सहायता करती थी. Him in different things. उसकी विभिन्न चीजों में, मेरी नैन्सी उसकी विभिन्न चीजों में सहायता किया करती थी. At night, Ben and Nancy were talking to each other. एक रात को बेन और नैन्सी आपस में बात कर रहे थे. ईच अदर मीन एक दूसरे से, टॉकिंग मीन बात कर रहे थे. यानी एक रात बेन और नैन्सी एक दूसरे से बात कर रहे थे. बेन, लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड नो मनी लेफ्ट. आपस में बात कर रहे हैं. लास्ट पीस ऑफ लेदर, अंतिम, लेदर मीन चमड़ा, अंतिम चमड़े का टुकड़ा. लास्ट मीन अंतिम, एंड नो मनी, और पैसा नहीं है. लेफ्ट, बचा. लेफ्ट मीन बचा, मतलब पैसा नहीं बचा है. हाउ विल बाई फूड. हम भोजन कैसे खरीदेंगे. फूड मीन बच्चों भोजन होता है, बाई मीन खरीदना. हम भोजन कैसे खरीदेंगे. हाउ मीन कैसे. नैन्सी, गॉड विल हेल्प अस. भगवान हमारी सहायता करेंगे. डोंट वरी, चिंता मत करो. बेन, आफ्टर कटिंग मतलब आफ्टर मीन बाद में, कटिंग करने के बाद, द पीस पेयर ऑफ शूज, द लास्ट पेयर ऑफ शूज, अंतिम जोड़ी जूते की कटिंग करने के बाद, दैट नाइट, उस रात, बेन वेंट टू बेड. बेन अपने बिस्तर पे चला गया. ही गॉट ए सरप्राइज. उसे एक आश्चर्यजनक चीज मिली. उसे दी नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, व्हेन ही सॉ समथिंग स्पेशल, उसने कुछ विशेष चीजें देखी. बेन, नैन्सी, लुक एट दिस. इधर देखो, यह देखो. ए न्यू पेयर ऑफ शूज, एक नया जूते का जोड़ा. शाइनिंग ब्राइट, जो कि चमक रहा है, चमकीला चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, कितना चमक रहा है. शाइनिंग ब्राइट, कितना चमक रहा है. नैन्सी, दिस पेयर इज वेरी ब्यूटीफुल. यह पेयर बहुत सुंदर है, यह जोड़ी जूता बहुत सुंदर है. आई न्यू दैट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट. हम जानते हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ ठीक होगा. गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है. बेन सोल्ड द शूज इन द मार्केट. बेन ने उस जूते को मार्केट में बेचा. एंड ब्रॉट मोर लेदर विद द मनी, और बहुत सा चमड़ा उस पैसे से ले आया, उस धन से ले आया. दैट ही गॉट फ्रॉम सेल ऑफ द शूज, जो उसे जूता बेचने में मिले थे. We will see next page. The same things happened again on the next night. Same things, बिल्कुल वही घटना फिर दूसरी रात्रि को घटी. He cut the leather for the shoes. He cut, उसने काटा. The leather, चमड़ा. For the shoes, जूतों के लिए, मतलब जूता बनाने के लिए उसने चमड़ा काटा. And found them, और पाया. Stitched next morning, दूसरे दिन सिले हुए, और उनको दूसरे दिन वो सिले हुए पाया. This happened every day. यही डेली होता रहता था, प्रतिदिन होता रहता था. Every minute, प्रत्येक दिन. After a few days, कुछ दिनों के बाद, बेन एंड नैन्सी टॉक्ड अबाउट द इवेंट. बेन और नैन्सी इस घटना के बारे में बात करने लगे. इवेंट मीन बच्चों घटना होता है. बेन, लेट अस हाइड टुडे. आज हम लोग छिपेंगे. मतलब आओ हम लोग छिपें. लेट अस हाइड टुडे, आज हम लोग छिपेंगे. एंड फाइंड आउट, और देखेंगे, पता लगाएंगे. Who does the stitching of the shoes for us? कौन हमारे लिए जूतों की सिलाई करता है. That night they hide themselves. दूसरी रात को वो अपने को छिपा लेते हैं, स्वयं को छिपाते हैं. Behind the door, दरवाजे के पीछे. And waited, और प्रतीक्षा करते हैं. Soon they saw, जल्दी ही वे देखते हैं.
5 elves entering the room, 7 छोटे लोग यानी 7 छोटे बौने कमरे में प्रवेश करते हैं. They were carrying small cobbler. They were carrying small cobbler's tools. वो एक छोटे से मोची का टूल्स लिए रहते हैं, औजार लिए रहते हैं, छोटे छोटे औजार लिए रहते हैं. विद्यम अपने साथ, यानी छोटे औजार जो है अपने साथ वो लिए रहते हैं. दी एल्फ्स डांस्ड. एल्फ्स डांस करते हैं, यानी वो जो छोटे लोग यानी बौने लोग डांस करते हैं, नाचते हैं. एंड सैंग और गाना गाते हैं. एज दे सैट और फिर बैठ जाते हैं. डाउन टू वर्क, काम करने के लिए. मतलब जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो पहले गाना गाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं और गाना गाते हैं और इसके बाद काम के लिए बैठ जाते हैं. द एल्फ्स वेयर टॉकिंग टू ईच अदर्स. बौने जो है आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. वी आर द 5 बिजी एल्फ्स. हम लोग 5 व्यस्त एल्फ्स हैं. वी लाइक टू हेल्प द नीडी पीपल्स. नीडी मीन आवश्यकता, जिनको आवश्यकता होती है. नीडी मतलब हम लोग आवश्यकता वाले लोगों की मदद करते हैं. वी लाइक टू फीड एवरी प्यूअर बॉडी. और प्रत्येक गरीब लोगों को खाना खिलाना, भोजन देना पसंद करते हैं. यानी हम लोग प्रत्येक गरीब लोगों को भोजन देना पसंद करते हैं. एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रेडी. सिवाय एक जो कि लालची था. द एल्फ्स फिनिश द स्टिचिंग ऑफ द शूज एंड वेंट अवे. मतलब शूज की स्टिचिंग मीन्स सिलाई करना. सिलाई का काम फिनिश्ड करने के बाद, समाप्त करने के बाद, मतलब जूतों की सिलाई. द एल्फ्स फिनिश्ड द स्टिचिंग. एल्फ्स यानी बौनों ने सिलाई का काम समाप्त किया. ऑफ द शूज यानी जूतों की सिलाई का काम बौनों ने समाप्त किया. एंड वेंट अवे और चले गए. नैन्सी सच काइंड लिटिल पीपल. ठीक प्रकार इस प्रकार लिटिल पीपल छोटे लोग, मतलब इस प्रकार के छोटे लोग. आई विल मेक सम क्लॉथ फॉर देम टू से थैंक यू. मतलब इस प्रकार के छोटे लोगों के लिए आई विल मेक सम क्लॉथ फॉर देम. हम उनके लिए कपड़े बनाएंगे, कुछ कपड़े सिलेंगे या बनाएंगे. टू से थैंक यू, उनको धन्यवाद कहने के लिए. द नेक्स्ट नाइट दूसरे दिन रात्रि को. व्हेन द एल्फ्स रीच द हाउस. एल्फ्स जब घर पहुंचते हैं. दे वेयर अमेज्ड. वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं. टू फाइंड द सेट्स ऑफ ब्यूटीफुल क्लॉथ्स. सुंदर कपड़ों के सेट देख करके. इन प्लेस ऑफ लेदर, मतलब चमड़े के स्थान पर सुंदर कपड़े देख करके वे प्रसन्न हो जाते हैं. दे पुट ऑन द क्लॉथ्स. वे उस कपड़े को पुट ऑन में बच्चों पहनना होता है. दे पुट ऑन द क्लॉथ्स. वे कपड़े को पहनते हैं. हैप्पीली खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक. एंड डांस्ड ऑल नाइट. और पूरी रात डांस करते हैं, पूरी रात नाचते हैं. बेन एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट द काइंड एल्फ्स. बेन और उनकी पत्नी कभी भी उन दयालु बौनों के बारे में नहीं भूलती. अब इसके बाद इसमें वर्ड मीनिंग बच्चों दिया गया है. इसको अपनी कॉपी में लिख करके इसको लर्न करना है. बस आज की वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.